مضبوط رشتہ۔ شام ہوئی اور ڈھیر سارے پرندے میدان میں لگے ہوئے درخت پر بسیرے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ان پرندوں کا یہی معمول تھا۔ صبح منہ اندھیرے رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے اور شام ہوتے ہی ان کے گول کے گول اڑتے ہوئے آتے اور درخت پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر ان کی بیٹھک جاری رہتی، ایک دوسرے کو دن بھر کی کہانی سنائی جاتی، اپنے دکھڑے سنائے جاتے، نئے نئے تجربے بیان کیے جاتے، رزق حاصل کرنے کے ٹھکانے بتائے جاتے اور شکاری کی گولی، چڑی مار کے جال اور بڑے ظالم پرندوں سے بچنے کے طریقوں پر غور کیا جاتا۔ یہ بیٹھک ہمیشہ ان الفاظ پر ختم ہوتی: اے ہمارے پالنے والے، ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک اور دن خیریت سے گزرا۔ تو نے ہمارا پیٹ بھی بھر دیا اور ہمیں خطروں سے بھی بچایا۔ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دی کہ ہم لوٹ کر اپنے اس پیارے ہرے بھرے گھر آ سکیں اور سکون سے رات گزار سکیں۔ ہمارے رب، تو ہمارے اس ٹھکانے کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ہمارا یہ بسیرا ہر بلا سے محفوظ رہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ دور دور تک سنائی دیتی، لیکن جو جو اندھیرا بڑھتا یہ شور کم ہو جاتا اور پھر ایسا سناٹا چھا جاتا کہ ایک آواز نہ سنائی دیتی۔ یہ درخت بہت پرانا اور بہت اونچا تھا۔ بستی کے جس آدمی سے پوچھو وہ یہی کہتا تھا کہ بھائی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس درخت کو اسی طرح ہوا میں جھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس پر پرندوں کا یہ ہجوم بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس درخت پر طوطے، مینائیں، فاختائیں اور بعض ایسی رنگ برنگی چڑیاں آ کر بیٹھتی تھیں جن کے نام بھی بستی والوں کو معلوم نہ تھے۔ طوطے ایسے خوش نما اور رنگ رنگ کے تھے کہ بس دیکھا کیجیے۔ کبھی کبھی ہدہد کا ایک جوڑا بھی آ نکلتا۔ سارے پرندے بڑے ادب سے انہیں ایک اچھی جگہ بٹھاتے اور کہتے کہ حضرت سلیمان کے درباری ہیں۔ درخت کے پاس سے گزرنے والے لوگ اکثر یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھتے رہتے جب تک یہ پرندے اندھیرے میں چھپ نہ جاتے۔ درخت کے قریب ہی لکڑی کی ایک لمبی سی بینچ پڑی تھی۔ کسی نے اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچانے کی خاطر یہ بینچ یہاں ڈلوا دی تھی۔ خیال یہ تھا کہ کوئی تھکا ہارا راہگیر اس پر بیٹھے گا تو دعا ہی دے گا، لیکن بینچ کی پشت پر جو نام لکھے ہوئے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا گئے تھے اور ان پر ہری ہری کائی کی ہلکی سی تہ جم چکی تھی۔ شاید یہ بینچ بنوانے والا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، ورنہ اس پر لکھے ہوئے نام کی صفائی ضرور کرتا۔ خیر، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بزرگ جو بلا ناگہ روز شام کو اس بینچ پر بیٹھ کر اس درخت کو تکتے رہتے تھے، اس بینچ پر لکھے ہوئے ناموں سے خوب واقف تھے، اس لیے وہ ہمیشہ بیٹھنے سے پہلے ان کے لیے سورۃ فاتح ضرور پڑھ لیتے تھے۔ یہ بزرگ بینچ پر بیٹھ کر دیر تک درخت کو تکتے رہتے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ان کے کانوں میں رس گھولتی رہتی اور درخت کی ہریالی اور اس پر بیٹھے ہوئے پرندوں کے پیارے پیارے رنگ ان کی آنکھوں کی روشنی تیز کرتے رہتے۔ ان بزرگ کو یقین تھا کہ اس بڑی عمر میں ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت جو اتنی اچھی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ روزانہ یہ حسین سرسبز منظر دیکھتے اور پرندوں کی دلکش آوازیں سنتے ہیں۔ وہ اکثر یہ منظر دیکھتے دیکھتے کھو جاتے، پھر ان کے ہونٹ ملنے شروع ہوتے اور دل سے آواز نکلتی: سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سارے پرندے ان بزرگ کو جانتے پہچانتے تھے۔ انہیں بزرگ کا نام تو معلوم نہیں تھا، لیکن ان کی بزرگی کی وجہ سے وہ انہیں بڑے میاں کہنے لگتے تھے۔ وہ سب بڑے میاں کی وہاں موجودگی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اگر کسی دن بیماری کی وجہ سے وہ نہ آ پاتے تو پرندے شور مچانے لگتے: بڑے میاں نہیں آئے، بڑے میاں نہیں آئے، اللہ خیر کرے، اللہ انہیں جیتا رکھے۔ بھلا پرندے بڑے میاں کے لیے دعا کیوں نہ کرتے؟ وہ بھی تو ان کے لیے مزے مزے کی چیزیں لاتے تھے۔ کبھی اناج کے دانے لے کر آتے، کبھی پھل لے کر آتے، کبھی چوری لے کر آتے۔ بڑے میاں اپنی لائی ہوئی چیزیں زمین پر بکھیر دیتے۔ پرندے درخت سے اترتے، دانہ چگتے اور ایسی نظروں سے بڑے میاں کو دیکھتے ہوئے واپس درخت پر بیٹھ جاتے جیسے کہہ رہے ہوں: اے بزرگ، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا۔ آپ کو اللہ کی سب مخلوقات سے پیار ہے۔ بے شک آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت کا بھرم قائم ہے۔ بڑے میاں اور پرندوں کے درمیان دوستی اور محبت کا یہ رشتہ مضبوط ہوتا گیا، اتنی خاموشی سے کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہوا۔ پرندوں سے ہی نہیں، بڑے میاں کو اس درخت سے بھی بہت پیار تھا۔ وہ عمر میں ان سے بڑا تھا۔ انہوں نے ہوش سنبھالا
तो कभी उसकी छाँव में खेलते, कभी उसकी टहनियों पर झूले और कभी स्कूल का सबक याद करने के लिए घर की गर्मी से तंग आकर उसकी ठंडी छाँव में आ बैठते। दरख्त था भी बड़ा सायादार और खूबसूरत। ये दरख्त उस बस्ती की पहचान बन चुका था। दूसरे गांव वाले उस बस्ती को पेड़ वाली बस्ती कहने लगे थे। एक दिन बड़े मियाँ सुबह सवेरे किसी काम से अपने घर से निकले, मैदान की तरफ से गुजरे तो क्या देखा कि बूढ़े दरख्त के पास कुछ लोग जमा हैं और करीब में बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई मुहिम शुरू होने वाली है। बड़े मियाँ ने आगे बढ़कर पूछा, भाइयों ये क्या माजरा है? एक आदमी ने बताया, ज़िम्मेदार साहब ने ये दरख्त कटवाने का फ़ैसला किया है। दरख्त कटवाने का फ़ैसला? बड़े मियाँ का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। चंद सेकंड बाद उन्होंने अपने होश हवास जमा किए और सवाल किया, लेकिन क्यों? उन्हें जवाब मिला, दरख्त बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर थोड़ी सी भी आंधी आ गई तो ये गिर पड़ेगा। ये दरख्त राहगीरों और यहाँ पर खेलने वाले बच्चों के लिए ख़तरा बन गया है। बड़े मियाँ गुस्से से बोले, बूढ़ा तो मैं भी हो गया हूँ, मुझे भी काट डालो। ज़िम्मेदार के आदमी मुस्कराए और उन्होंने एक दूसरे को आंख मारी जैसे कह रहे हों कि बूढ़ा बह गया है, सटिया गया है, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर इनसे एक आदमी बोला, बड़े मियाँ इस दरख्त की जड़ें बहुत फैलती जा रही हैं। ये मजबूत जड़ें मैदान के आसपास घरों को ढहा देंगी। बड़े मियाँ ने इस शख्स की बात पर तंज से एक भरपूर कहका लगाया और बोले, वाह भाई वाह, ये खूब रही। एक तरफ तो इस दरख्त की जड़ें इतनी कमज़ोर हैं कि वो इसका बोझ न संभाल पाएंगी और दरख्त गिर पड़ेगा, और दूसरी तरफ जड़ें इतनी मजबूत और मजबूत होती जा रही हैं कि घरों को ढहा देंगी। अरे वाह भाइयों, ये क्यों नहीं कहते कि इस दरख्त को उखाड़ फेंकने और इसे काट डालने में ज़िम्मेदार का कोई अपना फ़ायदा है, इसका कोई मकसद पूरा होता है। ज़िम्मेदार के कारिंदों ने बड़े मियाँ की बात सुनी अनसुनी की और मशीनों को दरख्त के नज़दीक लाने लगे। बड़े मियाँ के जिस्म में तो जैसे करंट दौड़ गया। वो तीर की तरह आगे बढ़े और दरख्त को इस तरह अपनी कमज़ोर बाहों की हिफाजत में लेने की कोशिश की जैसे किसी जिगरी दोस्त से गले मिल रहे हों। उसी वक़्त किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, आप बूढ़े आदमी हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, एक तरफ हट जाइए, कहीं हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। बड़े मियाँ ने दरख्त के तने पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बड़े कड़वे लहजे में कहा, बरखुरदार, ये दरख्त तो मुझसे भी ज़्यादा बूढ़ा है, कुछ इसकी भी इज्जत कर लो। देखो ये भी जानदार है, हरा भरा है, अल्लाह की मखलूक है। जवाब मिला, छोड़ो बाबा जी, ये तकरीर छोड़ो, हमें काम करने दो, हम तो वही करेंगे जो ज़िम्मेदार का हुक्म है। बड़े मियाँ का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से होकर बोले, अरे ज़ालिमों, ज़िम्मेदार के हुक्म पर तुम इस दरख्त को काट डालोगे जो तपती दोपहर में लोगों को साया देता है, जिसकी टहनियाँ मुसाफिर को पंखा झलती हैं और इसकी छाँव में बैठते हैं। तुम में से कितने ऐसे होंगे जो इसके साए में खेले होंगे और इसकी शाखों पर झूला झूला होगा? ज़रा सोचो, ये दरख्त हमारी बस्ती की निशानी है, क्या तुम अपनी पहचान ख़त्म कर दोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना सैकड़ों परिंदे इसकी शाखों पर आराम करते हैं, रात बसर करते हैं। क्या तुम इन खूबसूरत परिंदों को बेघर कर दोगे, जिन्हें देखकर और जिनकी चहचहाहट सुनकर हमें अपने खालिक की याद आती है? एक मोटे आदमी ने नागवारी से कहा, ये बूढ़ा तो कुछ ज़्यादा ही तकरीर झाड़ रहा है, हटाओ इसे। फिर एक हाथ बड़े मियाँ की तरफ बढ़ा। बड़े मियाँ दरख्त से और भी चिमट गए और धाड़े, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, पहले मुझे काटो फिर ये दरख्त काटना, मैं नहीं हटूंगा, काट डालो मुझे। बड़े हुए हाथ ने बड़े मियाँ की कमज़ोर बाजू को मजबूती से पकड़ लिया और आवाज़ आई, चलो हटो एक तरफ। बड़े मियाँ लड़खड़ा कर एक तरफ जा गिरे। तमाशा देखने वालों में से चंद एक मुस्कराए, एक दो हंस पड़े और बाकी खामोश रहे। अचानक वहाँ एक बारोब और कड़कदार आवाज़ गूंजी, बस बहुत हो गई, खबरदार अब इन बुज़ुर्ग को हाथ ना लगाना, वरना तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होगा। तुम्हारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया है कि एक बुज़ुर्ग की बात ध्यान से सुनने की बजाय उन्हें धक्के दे रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? ज़िम्मेदार के आदमियों ने घबरा कर देखा तो अपने करीब बस्ती के बहुत से जोशीले नौजवानों को खड़े पाया। दरख्त पर बैठे हुए परिंदे अपने परों को ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगे, जैसे वो भी बड़े मियाँ की हिमायत कर रहे हों। माहौल बिगड़ा तो ज़िम्मेदार के कारिंदों ने यही गनीमत जाना कि वहाँ से खिसक लें। उन्होंने अपना सामान समेटा और चल दिए। मजमा झट गया। बड़े मियाँ इस नौजवान और दूसरे हिमायतियों का शुक्रिया अदा करते हुए
बेंच पर जा बैठे। उन्होंने फैसला किया कि वो शाम तक यहीं बैठे रहेंगे कि कहीं ज़िम्मेदार के कारिंदे फिर ना आ जाएं। वैसे भी वो अकेले ही रहते थे, इस वक्त घर जाना ज़रूरी नहीं था। बड़े मियाँ एक करीबी दुकान से खाने पीने की चीज़ें ले आए और वो खा पी कर ऐसे तन कर बैठे जैसे वहाँ पहरा दे रहे हों। दिन ढलने लगा, रोशनी कम होने लगी, परिंदे वापस आने लगे। जो 2-4 परिंदे पहले से बैठे हुए थे, उन्होंने आने वाले परिंदों को सारा वाक़या सुनाया। खलबली मच गई, हंगामा हो गया। ऐसा शोर हुआ कि कान परी आवाज़ न सुनाई दी। थोड़ी देर बाद कुछ सुकून हुआ और परिंदों की बैठक शुरू हो गई। बड़े मियाँ बेंच पर बैठे रंग बिरंगे परिंदों को तके जा रहे थे। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी और दिल ही दिल में वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि जिसने इस बेज़बान मखलूक को बेघर होने से बचा लिया। इधर ये बेज़बान मखलूक एक साथ मिलकर अपनी सुरीली आवाज़ में ये दुआ मांग रही थी, ऐ हमारे पालने वाले, जिस तरह इस नेक इंसान ने हमें बेघर होने से बचा लिया है, इसी तरह तो इसे बेघर होने से बचा, हमेशा बचाना। ऐ हमारे रब, हमारी तुझसे इल्तिजा है कि इसकी चारदीवारी और छत को हमेशा कायम रखना। बड़े मियाँ मुस्कुरा कर दरख्त को की तरफ देख रहे थे। अचानक उन्हें बस्ती की जानिब से कुछ शोर सुनाई दिया। उन्होंने गर्दन मोड़ी तो उन्हें बस्ती में शोले बुलंद होते नजर आए। उस जानिब उनका घर भी था। बड़े मियाँ ने सोचा, अल्लाह मालिक है, मेरे घर में है ही कौन जिसकी मैं फ़िक्र करूं। घर जलता है तो जल जाए, बस अल्लाह दूसरों के घरों को महफूज रखे। आग बस्ती के एक शादी वाले घर में लगी थी, जिससे मिला हुआ बड़े मियाँ का घर था। शादी वाला घर इस वक्त खाली हो चुका था। बस्ती शहर से ज़्यादा दूर नहीं थी। आग बुझाने वाली गाड़ियाँ जल्द पहुँच गईं। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इतनी देर में बहुत नुकसान हो गया था। बड़े मियाँ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो देखा शादी वाला घर तो बिल्कुल जल चुका था, लेकिन उनका घर बिल्कुल सही सलामत है। किसी महल्लेदार की नज़र उन पर पड़ी तो बोला, चचा बड़े खुशकिस्मत हैं, ये तो मौजज़ा है, मौजज़ा। ऐसा लगता है कि शोले आपके घर से मुंह मोड़ रहे हैं, आंच तक नहीं आई आपके घर को। दूसरा पड़ोसी बोला, चचा बताओ कौन सी नेकी की थी आपने, किसकी दुआ लग गई। बड़े मियाँ कुछ ना बोले, बस दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे।